नमस्ते। अब हम यूनिट 4 के सेकंड पार्ट की रीडिंग स्टार्ट करेंगे। बिपिन बाबू's car was safely parked in Bertram Street by the Lighthouse Cinema. He told the driver as he got into the car, "Just drive by the Ganga. Will you, Sitaram?" Driving up the Strand Road, Bipin Babu regretted having paid so much attention to the intruder. बिपिन बाबू की कार लाइट हाउस सिनेमा के पास बर्ट्रम स्ट्रीट में सुरक्षित खड़ी थी। कार में बैठते हुए उन्होंने ड्राइवर से कहा, "सीताराम, गंगा के किनारे किनारे गाड़ी चलाओ।" स्ट्रैंड रोड पर गाड़ी चलाते हुए बिपिन बाबू को इस बात का पछतावा हुआ कि उन्होंने उस अजनबी पर इतना ध्यान दिया। He had never been to Ranchi, no question about it. It was inconceivable that he should forget such an incident which took place only 6 or 7 years ago. He had an excellent memory, unless Bipin Babu's head reeled. वह कभी रांची नहीं गए थे, इसमें कोई शक नहीं था। यह सोचना भी मुश्किल था कि वह ऐसी घटना को भूल सकते हैं जो सिर्फ 6-7 साल पहले हुई थी। उनकी याददाश्त बहुत अच्छी थी, जब तक कि बिपिन बाबू का सिर ना घूम जाए। Was he losing his mind? But how could that be? He was working daily in his office. It was a big firm and he was doing a responsible job. He wasn't aware of anything ever going seriously wrong. Only today he spoke for half an hour at an important meeting, and yet, यानी क्या वह अपना दिमाग खो रहा था? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता था? वह रोज अपने ऑफिस में काम कर रहा था। यह एक बड़ी कंपनी थी और वह एक जिम्मेदार काम कर रहा था। उसे कभी भी कुछ भी गंभीर रूप से गलत होने का पता नहीं चला था। आज ही उसने एक जरूरी मीटिंग में आधे घंटे तक बात की थी और फिर भी एंड येट the man knew a great deal about him. How? He even seemed to know some intimate details. The bag of books, wife's death, brother's insanity. The only mistake was about his having gone to Ranchi. Not a mistake, a deliberate lie. In 58, during the pujas, he was in Kanpur at his friend Haridas Bagchi's place. और फिर भी वह आदमी उसके बारे में बहुत कुछ जानता था। कैसे उसे तो कुछ पर्सनल बातें भी पता थी। किताबों का बैग, पत्नी की मौत, भाई का पागलपन। बस एक गलती थी कि वह रांची गया था। गलती नहीं, जानबूझकर बोला गया झूठ। 58 में पूजा के दौरान वह कानपुर में अपने दोस्त हरिदास बागची के घर पर था। All Bipin Babu had to do was write to. No, there was no way of writing to Haridas. Bipin Babu suddenly remembered that Haridas had left with his wife for Japan some weeks ago, and he did not have his address. बिपिन बाबू को बस इतना करना था कि चिट्ठी लिखनी थी। नहीं, हरिदास को चिट्ठी लिखने का कोई तरीका नहीं था। बिपिन बाबू को अचानक याद आया कि हरिदास कुछ हफ्ते पहले अपनी पत्नी के साथ जापान चला गया था और उनके पास उसका पता नहीं था। But where was the need for proof? He himself was fully aware that he had not been to Ranchi, and that was. लेकिन सबूत की जरूरत ही कहाँ थी? उसे खुद पूरी तरह पता था कि वह रांची नहीं गया था। The river bridge was bracing, and yet a slight discomfort lingered in बिपिन बाबू's mind. यानी कि नदी की हवा ताजगी देने वाली थी, फिर भी बिपिन बाबू के मन में थोड़ी बेचैनी बनी हुई थी। Around Hastings, बिपिन बाबू decided to roll up his trousers and take a look at his right knee. हेस्टिंग के पास बिपिन बाबू ने अपनी पैंट ऊपर करने और अपने दाहिने घुटने को देखने का फैसला किया। There was the mark of an old inch-long cut. It was impossible to tell when the injury had occurred. यानी वहाँ एक इंच लंबे पुराने कट का निशान था। यह बताना मुश्किल था कि चोट कब लगी
थी। Had he never had a fall as a boy and cut his knee, tried to recall such an incident but could not. क्या बचपन में वह कभी गिरे नहीं थे और उनके घुटने में चोट नहीं लगी थी? उन्होंने ऐसी कोई घटना याद करने की कोशिश की, लेकिन याद नहीं आया। Then Vipin Babu suddenly thought of Dinesh Mukherjee. The man had said that Dinesh was in Ranchi at the same time. The best thing surely would be to ask him. He lived quite near in Beninandan Street. What about going right now? But then, if he had never been to Ranchi, what would Dinesh think if Vipin Babu asked for a confirmation? He would probably conclude Vipin Babu was going nuts. No, it would be ridiculous to ask him. यानी फिर बिपिन बाबू को अचानक दिनेश मुखर्जी की याद आई। उस आदमी ने कहा था कि दिनेश भी उस समय रांची में थे। सबसे अच्छा तो यही होगा कि उनसे पूछा जाए। वह काफ़ी पास ही रहते थे। बेनी नंदन स्ट्रीट में अभी जाकर पूछ लिया जाए। लेकिन फिर अगर वह कभी रांची गए ही नहीं थे, तो अगर बिपिन बाबू उनसे कंफर्मेशन मांगेंगे तो दिनेश क्या सोचेगा? वह शायद सोचेगा कि बिपिन बाबू पागल हो रहे हैं। नहीं, उनसे पूछना बेवकूफ़ी होगी। एंड ही न्यू हाउ रुथलेस दिनेश सरकाजम कुड बी, यानी कि और वह जानता था कि दिनेश का मजाक कितना बेरहम हो सकता है। Sipping a cold drink in his air-conditioned living just because they have nothing else to do, they go about their room. Bipin Babu feels at ease again. Such a nuisance getting into other people's hair. यानी अपने एयर कंडीशन लिविंग रूम में कोल्ड ड्रिंक पीते हुए बिपिन बाबू को फिर से आराम महसूस हुआ। दूसरों के मामलों में दखल देना कितनी बड़ी मुसीबत है। After dinner, snuggling in bed with one of the new thrillers, Bipin Babu forgot all about the man in New Market. रात के खाने के बाद नई थ्रिलर किताबों में से एक के साथ बिस्तर में आराम करते हुए बिपिन बाबू न्यू मार्केट वाले आदमी के बारे में सब कुछ भूल गए। Next day in the office, Bipin Babu noticed that with every passing hour, the previous day's encounter was occupying more and more of his mind. If the man knew so much about Bipin Babu, how could he make such a mistake about the Ranchi trip? अगले दिन ऑफिस में बिपिन बाबू ने देखा कि हर गुजरते घंटे के साथ पिछले दिन की मुलाकात उनके दिमाग पर और हावी होती जा रही थी। अगर वह आदमी बिपिन बाबू के बारे में इतना सब कुछ जानता था, तो वह रांची ट्रिप के बारे में इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकता था? Just before lunch, Bipin Babu decided to ring Dinesh Mukherjee. It was better to settle the question on the phone. At least the embarrassment on his face would not show. लंच से ठीक पहले बिपिन बाबू ने दिनेश मुखर्जी को फ़ोन करने का फैसला किया। फ़ोन पर सवाल सुलझाना बेहतर होगा। कम से कम उनके चेहरे की शर्मिंदगी तो नहीं दिखेगी। 23516 बिपिन बाबू डायल द नंबर 235616। बिपिन बाबू ने नंबर डायल किया। हेलो, इज़ दैट दिनेश? दिस इज़ बिपिन हियर। यानी कि क्या यह दिनेश है? मैं बिपिन बोल रहा हूँ। वेल व्हाट्स द न्यूज़? अरे वाह, क्या खबर है? आई जस्ट वॉन्टेड टू फाइंड आउट इफ़ यू रिकॉल्ड एन इंसिडेंट विच टुक प्लेस इन 58। मैं बस यह जानना चाहता था कि क्या तुम्हें 58 में हुई कोई घटना याद है? 58 व्हाट इंसिडेंट? कौन सी घटना? Were you in Calcutta right through that year? That's the first thing I have got to know. क्या आप उस पूरे साल कलकत्ता में ही थे? यह पहली बात है जो मुझे जाननी है। वेट जस्ट अ मिनट। 58 जस्ट लेट मी चेक इन। बस एक मिनट रुकिए। 58 मुझे अपनी डायरी में देखने दीजिए। माई डायरी। फॉर अ मिनट there was silence. Bipin Babu could feel that his heartbeat had gone up. He was sweating a little. यानी कि एक मिनट के लिए शांति छा गई।
बिपिन बाबू महसूस कर सकते थे कि उनकी धड़कन बढ़ गई थी। उन्हें थोड़ा पसीना आ रहा था। हेलो, यस यानी कि हाँ, आई हैव गॉट इट, आई हैव बीन आउट ट्वाइस, मुझे मिल गया, मैं 2 बार बाहर गया था। वेयर यानी कहाँ। Once in February nearby to Krishnanagar for a nephew's wedding, and then but you would know about this one, the trip to Ranchi. You were there too, that's all. But what's all this sleuthing about? यानी एक बार फरवरी में पास में कृष्णनगर में एक भतीजे की शादी में, और फिर लेकिन आपको इसके बारे में पता होगा, रांची की ट्रिप, आप भी वहाँ थे, बस इतना ही। लेकिन यह सब जासूसी किस बारे में है? नो, आई जस्ट वॉन्टेड टू एनीवे, थैंक्स। नहीं, मैं बस जानना चाहता था, वैसे धन्यवाद। बिपिन बाबू स्लैम्ड the receiver down and gripped his head with his hands. He felt his head swimming. A chill seemed to spread over his body. There were sandwiches in his tiffin box, but he did not eat them. He had lost his appetite. बिपिन बाबू ने रिसीवर पटक दिया और अपने हाथों से अपना सिर पकड़ लिया। उन्हें लगा कि उनका सिर घूम रहा है। उनके पूरे शरीर में ठंडक सी फैल गई। उनके टिफ़िन बॉक्स में सैंडविच थे, लेकिन उन्होंने उन्हें नहीं खाया। उनकी भूख खत्म हो गई थी। ओके।